آج کل جو لوگ بولتے ہیں نا، بہت سے جگہوں کے اوپر بڑے بڑے MPs بھاشن دیتے ہیں، دلی کی منچ میں وہ کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں ہیں، یہ جہاں جہاں پر ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان کہاں نہیں، بھارت کی بات چھوڑو، پوری دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، موتیا بن کا علاج کھوج کرنے والا کون؟ نوٹ کرنا ہماری باتوں کو، موتیا بن کسی کی آنکھ میں ہو جائے وہ انسان ہی از ناٹ ایبل ٹو لک اینی تھنگ ان دا ورلڈ، دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، بیکاز ہی از بلائنڈ اینڈ ہی از نابینا۔ موتیا بن کسی کو ہو جائے، لیکن اس موتیا بن کا پراپر علاج کس نے کھوجا ہے؟ اسلام کو برا کہنے والوں، قرآن کو برا کہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنے والوں کو منحوس بتانے والوں، اس موتیا بن کا علاج کرنے والا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پڑھنے والا، وہ نبی کا عاشق، وہ محمد الرسول اللہ کا دیوانہ، اس کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے، جو قرآن کریم کا پڑھنے والا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن، اس کو بتایا گیا آئی سرجن موتیا بن کا علاج آپریشن کر کے اگر کسی مائیں کے لال نے بتایا ہے تو اس شخص کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے۔ پوچھئے دنیا والوں سے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج جو سول انجینئر بن جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ بیٹے سول انجینئر بنے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تو موجد ہوگا۔ سول انجینئر کا موجد کون؟ ابو عباس حاتم ظفری ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، اور سول انجینئرنگ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام علم الحیل ہے۔ علم الحیل، سول انجینئر جب تک نہیں پڑھایا جائے گا تو دنیا کے اندر سول انجینئر نہیں پیدا ہو سکتا۔ میکینیکل انجینئر اگر کوئی بنتا ہے، آئی ایم اے میکینیکل انجینئر، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میکینیکل انجینئر ہے، بڑی عزت کا مالک ہے۔ پوچھو کہ میکینیکل انجینئر کو دنیا میں پیش کرنے والا کون؟ احمد بن موسیٰ شاکر۔ احمد بن موسیٰ شاکر نبی کا غلام، مدرسے کا پڑھا ہوا، 10 سال کی عمر میں مدرسے کا پڑھا ہوا ایک حافظ قرآن، جس کی کتاب آج بھی یورپ میں پڑھائی جاتی، آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی۔ ہمارے نبی کا نام لیتے تھے، نبی کا غلام تھا وہ بچہ، غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، نام اس کا شیخ حسین ابن علی سینا۔ 10 سال کی عمر میں یہ حافظ بنے کہ نہیں بنے؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں آپ کے سامنے تو میری زبان کو آپ تالا لگا دیجئے گا، لیکن میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اے دنیا والوں، چیلنج مت کرو اسلام کو، چیلنج مت کرو علماء کرام کو۔ اگر کوئی انگریزی ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو آپ یہ مت کہو کہ they don't know anything، تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ انگریزی بولنا ہے، آؤ عبداللہ کے پاس۔ I am a product of مدرسہ، I spent 14 years completely in مدرسہ، in various مدرسہ۔ ہم نے 14 سال تک مدرسے کے اندر گزارا، and I am able to give a speech in front of the people in any topic، انشاءاللہ تبارک و تعالی from now and to the morning، just early in the morning میں انگلش میں تقریر کر سکتا ہوں۔ I am able to talk، I am able to speak with any person، with any gathering، کہیں پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی انگلش نہیں جانتا۔ میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں بچے کے پاس مائک لے کے، بچہ بتاؤ بھارت کا راشٹرپتی کون؟ جو بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے وہ بتا پائے گا کہ راشٹرپتی کون ہے؟ بچہ نورانی قاعدہ الف با تا سا، الف کا مخرج پوچھ لیجئے تو بتا دے گا، حروف تہجی کتنا ہے تو بتا لے گا۔ یہ میڈیا والے اتنے بڑے بڑے مائک لے کر پہنچ جاتے، کہاں؟ ناظری کا کلاس جہاں چلتا ہے وہاں پر چلے جاتے، اس بچے سے پوچھتے، بیٹے بتاؤ بھارت کا قانون کب امپلیمنٹ ہوا؟ وہ تو دور کی بات، ہمارے مدرسے کے اساتذہ، بہت سے اساتذہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ٹاپک ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے پھر آپ کیا پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ مدرسے میں صرف ہم اپنی دھارمک تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو،
قال اللہ قال الرسول دیتے ہیں. بہو نام جنمنا منتے گیانوان مام. میں اس کا ایکسپلین کروں گا. جو منتر میں نے دونوں پڑھے ہیں اس کو بتاؤں گا. یہ تعلیم سے ہی تعلق ہے. اپنے دھارمک تعلیم دیتے ہم اپنے بچوں کو. اب بتائیے وہ بچے کو اگر جا کر پوچھے گا کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں, کسی مکتب میں جا کر کہ بیٹے بتاؤ ذرا کہ ہمارا یہ دیش کب آزاد ہوا, چھوٹا بچہ ہے, پہلی بات تو وہ آزاد ہی نہیں سمجھے گا. اب وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں. اب یہی چیز اگر الٹا کیا جائے, میڈیا والے سے بتایا جائے کہ بتائیے آپ آئے مدرسے میں پڑھائی کے نظام کو ڈسٹرب کیا, آپ نے بڑی گستاخی کی ہے, ذرا آپ بتا دو گستاخی گاپ سے کہ گین سے, پسینہ چھوٹ جائے گا. نہ تو انڈیا ٹی وی والا بتا پائے گا, نہ تو آج تک والا بتا پائے گا. گستاخی گاف سے ہے کہ گین سے, یہ بھی نہیں بتا پائے گا. کیوں؟ اردو کے ورڈز ہیں, اور اردو کے ورڈ جتنے اچھے ہمارے مدارس کے علماء اور بچے بتا سکتے وہ نہیں بتا سکتے. انگریزی زبان کوئی پروفیشنل, کوئی ایوارڈ یافتہ لینگویج نہیں. ساری زبان اللہ کی ہے. عربی اللہ کی زبان, اردو مکس ہو کے بنی, 16 لینگویج سے جمع ہو کر اردو لینگویج بنی. عربی ہے, سنسکرت ہے, طبرانی ہے, سریانی ہے, فرینچ ہے, لاطینی زبان ہے. And every language is created by God, by Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah said in the Holy Quran and mentioned اختلاف السنتکم و الوانکم. ساری زبان کو ہم نے پیدا کیا ہے. آپ کے سامنے میں اگر کوئی انگلش میں اپنا تعارف پیش کرتا ہے تو اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے ہیں. ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں, ایئرپورٹ میں جاتے ہیں, ایئرپورٹ میں جائیں گے, فلائٹ میں جائیں گے تو انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں اردو بولتا ہوں, عموماً اردو بولتا ہوں, ہندی بولتا ہوں. ہم کو چائے دیجیے, جب وہ نہیں سمجھتے ہیں اس وقت کہتے ہیں I need water, I want to take tea. مجھے چائے چاہیے, پلیز گیو می ٹی. چائے دیجیے, مجھے پانی کی ضرورت ہے, مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے, یہاں سے چلے جائیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, کر سکتے, وہ تو دور کی بات. سنسکرت میں بات کریں گے. تمہارا نام کیا ہے؟ کم مم نم کم نم نم. بتاؤ تمہارا نام کیا. یہ لوگ نہیں بتا پائیں گے جو اپنی منوسمرتی لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں. سنسکرت میں ہے نا, کیا نام ہے تمہارا, نہیں بتا پائیں گے سنسکرت میں. ہمارا نام مم نما, کل بھی میں نے ایک جلسے میں اس کا ورنن کیا تھا. مم نما کیا کہتے ہیں؟ مم نما گووندہ, میرا نام گووندا. یہ اگزامپل دیا تھا ہم لوگوں کو پروفیسر سر نے, سشیل سر نے, یونیورسٹی کے اندر میں. ابھی جو ہم پچھلے مہینے گئے تھے وہاں پہ ریسرچ. مم نما عبداللہ, میرا نام عبداللہ. گھر کو ہم لوگ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بیت بولتے ہیں. انگلش میں ہاؤس بولتے ہیں, ہوم بول دیتے ہیں, تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. سنسکرت میں گروہم بول دیتے ہیں, گروہم. مم گروہم جو کی ہاتھ, مم نما عبداللہ. ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر. میں آپ کو دیکھتا ہوں اہم. میں سنسکرت میں اہم آتا, اہم ورڈ اہم. اہم نیترتو, میں آپ کو دیکھتا ہوں. اہم اپوشتی, میں بیٹھا ہوا ہوں. اہم استی, میں ہوں یہاں پر. یویم نستی, تم نہیں ہو یہاں پر. سنسکرت ہے. کیا کوئی سنسکرت بولے گا تو وہ ترم خواہ ہو گیا؟ نہیں, انسانیت نہیں ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر کے بتایا, اور پروفیٹ محمد رسول اللہ نے یوں کہا, بلکہ قرآن میں کہا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس زمین پر پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تعلیم جو ایجوکیشن ہے, روشنی ہے اس کے اندر, اور تعلیم اللہ کی صفت ہے, اللہ کی. جس کے اندر تعلیم آتی ہے, جس کے اندر جانکاری آتی ہے, گویا کہ اللہ کی صفت کچھ نہ کچھ منتقل ہو رہی ہے اس کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور.
तालीम हासिल करना, अल्लाह की कुछ न कुछ सिफत मुंतकिल होती, अल्लाह अता फरमाता है। और अल्लाह की सिफत जिसमें हो, श्रीमद् भगवत गीता में तो यूं कहा गया कि उसको बुरा मत कहो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। श्रीमद् भगवत गीता 7वें श्लोक का 18वां 19वां मंत्र। उदारा, उदारा, उदारा का मतलब सखी लोग। सखी, इससे ये पता चलता है सखी लोगों का मकाम बड़ा है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम। समाज में जो सखी लोग होते हैं उसका मकाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भगवत गीता ये कहता है कि बड़ा मकाम है उदारा। लेकिन सुनो, समाज में सखी लोगों से भी बढ़कर किसका मकाम, सखी लोगों को अलग करके बताया। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव। सखी लोग जितने भी हैं उनका एहतराम और उनकी इज्जत समाज में, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। लेकिन एक तरफ सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, लेकिन जिसको ज्ञान हो मेरा, जिसको मेरी जानकारी हो, जिसको मेरी नॉलेज हो, जो मेरे बारे में जानता हो, मेरे बारे में समझता हो। उदारा सर्व एवैते, एक एक वर्ड को क्लियर करके बता रहा, यूट्यूब से या फिर गूगल से निकाल कर रट कर नहीं बता रहा हूं, बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करके बता रहा हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम। लेकिन जिस बंदे में ज्ञान है, जिसमें तालीम है, जिसमें जानकारी है, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, साक्षात मैं हूं मैं, यानी जिस इंसान में ज्ञान है वो मैं हूं, उसके अंदर मैं हूं मैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसमें मैं हूं। उदारा सखी लोगों की इज्जत करो, मकाम बड़ा बुलंद है। सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः, आस्थितः अकीदा रखो, दिमाग में बिठा लो इस बात को, सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम, कि जिस बंदे में मैं हूं, जिसके अंदर मेरी सिफत है, वो इंसान दुनिया के अंदर कभी रुसवा नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर उसको दबाने से कोई नहीं दबा सकता। भले ही दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही हो, इस्लाम मजहब के बड़े बड़े विद्वानों के, उनके चरित्र को दबाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन दुनिया वालों, मैं तारीख को कुरेद कुरेद कर आपके सामने पेश करूंगा। भले ही तुम इस्लाम को टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहते हो कि ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है, ये रेडिकलाइजेशन इसके अंदर भरी हुई है, बुनियाद परस्त होते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं। आज तुमने साइंस का नाम दिया तो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हो। अगर तुमने आज किसी इल्म रियाजी को मैथमेटिशियन का नाम दिया तो कहते हो कि हम बड़े दुनिया के अंदर तरक्की वाले हो गए। अगर आप इल्म ऑप्टिक्स के ऊपर काम करते हो तो कहते हो कि हमने इन चीजों का इजाद किया। ये सारी चीजें हमारी चौखट से निकल करके गई है। याद कीजिए, एक बड़े शख्स का नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी को कौन नहीं जानता है। अगर इंसान को चेचक जैसी मुहलिक बीमारी हो जाए, इस मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया? पूछो इन मीडिया वालों से। मदरसे से पढ़ा लिखा एक नौजवान जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी है, चेचक की बीमारी का इलाज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी ने किया। अल्कोहल का मूजिद, अल्कोहल का बानी अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। कॉल ब्लैडर में अगर आपके पथरी हो जाए, मसाना कमजोर हो जाए, इसके ऊपर सबसे मजबूत किताब तहकीक अगर किसी की है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। नहीं मानोगे मेरी तहकीक को, एक तरफ उठाकर डाल दो। उठाओ 1923 की रिपोर्ट। लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस एक इजलास मुनाकिद, एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1923 में तमाम दुनिया के डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना जाता है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। आज जो एक दवाई का नाम आयुर्वेदिक
ऑर्गेनिक इंडिया नाम देते, आयुर्वेदिक का नाम ऑर्गेनिक इंडिया, इनऑर्गेनिक इंडिया। इस दवाई की खोज करने वाला कौन? मीडिया वाले तुम्हारे दादा? नहीं, उस शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी, जिन्होंने 500 किताबें अपनी किताबुल अदविया में लिखी। आज जो ये ऑर्गेनिक इंडिया प्योर आयुर्वेदिक दवाई को बोलते, बड़ी बड़ी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगी, आप किसी मॉल में जाएंगे वहां मिलेंगी, हमारे अमोर जो की हाथ में दवाई नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक इंडिया, एक दवाई की बोतल बड़ी कीमती होती है और प्योर दवाई होती। इस दवाई की खोज करने वाला कोई मायका लाल है तो उस शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी था। और तारीख उठाओ, देखो अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, दुनिया के अंदर बीमारी की इलाज का एक तरीका था। मैं मजबूर इसलिए हूं बोलने पर चूंकि हमारे मदारिस को टारगेट करते, हमारे तकरीबन 5000 मदरसे टारगेटेड हैं। इनको बताना चाहता हूं, तारीख नहीं बोलते हमारे उलमा तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम लूले हैं, हम बहरे हैं। द फादर ऑफ एविएशन कौन? इस धरती के ऊपर हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? अबू अब्बास ने किया। तारीख उठाकर देख लो। अब्दुल्ला झूठ बोलता है, हाथ में हथकड़ी लगा देना। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी को पूछो यूरोप वालों से क्या नाम है इनका? अलकीस अलबुबकीस नाम है। इसकी ये किताब पाई जाती, आज भी यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती। इलाज का एक तरीका था, कौन सा तरीका? दवाई का तरीका। मेडिसिन दे देंगे, मरीज सही हो जाएगा, वो घर को चले जाएंगे। लेकिन एक तरीका और इजाद किया, कौन सा? ऑपरेशन का तरीका। ऑपरेशन के आलात बनाए, उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। उसके बाद नाम आता है इब्न सीना का। मैंने बताया इब्न सीना, दैट हैज बीन रिटन बाय इब्न सीना a great books. His book's name is Al-Qanun. 10 लाख अल्फाज इस किताब में है और there are 5 chapters of this book. और इब्न सीना घर से भागकर मदरसे में गए, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। इनकी ये किताब आज भी कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है। कहाँ? कैम्ब्रिज। अगर कहीं कोई वहाँ पढ़ ले हमारा भारती तो उसको कहते हैं कि अरे कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, लंदन से पढ़कर आया। अच्छा, ये तो हमारी तारीखी रिपोर्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर स्टीफन ब्रेडली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर, उसने लिखा कि द फर्स्ट साइंसदान, द फर्स्ट साइंटिस्ट पर्सन, हिज नेम इब्न हैसम। उन्होंने किताब लिखी इल्म ऑप्टिक्स। ये जितने भी कैमरा है यहाँ पे जो चश्मे लगाते हैं, ये टोटल चीज़ें इब्न हैसम की प्रोडक्ट है। कहाँ से पढ़े? मदरसे से पढ़े। आओ बेटे मीडिया वालों, तुमको इंट्रोडक्शन चाहिए कि मदरसे वाला क्या कर सकते हैं? मदरसे वाला ये कर सकते हैं। ये मत समझो कि कुरान में कुछ नहीं है, पढ़ो। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा टू द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई 2 साल बाद रोबोट बनाकर लाएगा तो उस इंसान की सिर्फ इतना उसका कमाल होगा कि दुनिया के अंदर रोबोट को इजाद किया, लेकिन दिमाग में वो चीज आई कहां से? वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा कहां से आया? वो अब्बा आदम, वो मुंतकिल हुई नस्लन बाद नस्लिन। कहते हैं ना हम लोग, अगर कोई किसी की आवाज़ अच्छी होती है तो क्या बोलते हैं? अरे इस बच्चे की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, सबकी आवाज़ ख़राब है लेकिन ये बहुत खूबसूरत शायर बना। तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, इनका जो नाना था ना, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। यानी नाना की आवाज़ विरासत में नाती को मिल गई। या किसी की 2-3 नस्ल पहले पहलवानी होती है तो 2-3 नस्ल के बाद कोई बच्चा पहलवान बनता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनका परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा पहलवान थे, इसीलिए वो चीज़ निस्बतन मुंतकिल होकर इस बच्चे में आई। तो दुनिया वालों सुनो, वअल्लम आदम अल अस्मा, कंप्लीटली वी बिलीव इन कुरान। द कुरान नो डैमेज, द कुरान नो डिवाइडेड, द कुरान नो रिनोवेटेड, रिस्टोर्ड,
the Quran, the finally संविधान अल्लाह का फाइनली किताब है जो कुरान में है, दुनिया की तमाम ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कुरान में कहा वअल्लम आदमल अस्माअ। कुछ दिनों के बाद में अब ऐसी मशीन आने वाली है कि आदमी उसमें बैठेगा, बटन दबाएगा, 2 सेकंड के अंदर 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। ऐसी मशीन आने वाली देख लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि यार ये तो अंग्रेज़ों का वो है, अंग्रेज़ भी आदम की औलाद है। अंग्रेज़ों का कमाल नहीं है, उन्होंने जोड़ा है, जोड़कर, लेकिन वो ब्रेन, वो दिमाग, वो IQ कहाँ से आया? वअल्लम आदमल अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो दिमाग, वो शार्प माइंडनेस वो मुंतकिल होती रही। और कुरान भी कहता है वयख्लुक़ु मा, उलमा जानते हैं यख्लुक़ु फ़ेल मुज़ारे, यख्लुक़ु फ़ेल मुज़ारे, यख्लुक़ु पैदा करना, अकला याकुलु खाना, अकला याकुलु, अकला उसने खाया, याकुलु वो खाता है या वो खाएगा। अहम खदती, अहम खदती संस्कृत में बोलते, अहम खदती मैं खाता हूँ, अहम खदतु प्लीज खाइए। संस्कृत में थोड़ा सा तू ता फर्क कीजिए, सेंटेंस चेंज हो जाते थोड़ा सा। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, एशा बालका, एशह बालकह ये लड़का है, एशा एक मात्रा बढ़ा दिया, एशा बालिका वो ये लड़की, सह बालका वो लड़का, सा बालिका वो लड़की, एतत् फलम ये फ्रूट्स, ये फल, तत्फलम वो फ्रूट्स। संस्कृत है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन लर्न, बट जस्ट यू वर्क हार्ड एंड फॉर सम टाइम, थोड़ी सी मेहनत करेंगे सीख जाएंगे। क्या बताया? यख्लुक़ु माला, यख्लुक़ु, यख्लुक़ु में अल्लाह छुपा हुआ है, हुआ ज़मीर पोशीदा है। नहो सर्फ के ग्रामर पढ़ेंगे, वो पैदा करता है या करेगा? करता है। आज के ज़माने में अगर किसी ने अपाची बना दिया तो ये मत कहिए कि अरे बड़ा महान आदमी हो गया, ये खुदा हो गया। नहीं, वो खुदा नहीं, वयख्लुक़ु अल्लाह पैदा करता है, वयख्लुक़ु अल्लाह पैदा करता है माँ, रोबोट को, अपाची को, कार को, ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को, एविएशन को, एयरबेस को, सारी चीजें वयख्लुक़ु माँ में सारी चीजें आती है। बट माँ ला तालमून, अल्लाह उन तमाम चीज़ों को पैदा करता है या फ्यूचर में करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते, ला तालमून। लेकिन ये चीज़ें पैदा सब अल्लाह करता है, और सबका मेंशन अल्लाह ने कुरान में बयान किया। दुनिया का सबसे बड़ा राइटर कौन दुनिया वालों? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, मशरिक से मगरिब, उत्तर से दक्षिण की तारीख उठाओ, नाम और हम और आप जानते हैं, लेकिन शायद ये मालूम नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्ट्रिकल राइटर, उसका नाम तारीख इब्ने खुल्दून को लिखने वाला इब्ने खुल्दून है। हिसाब जिसको इल्म रियाजी और हिसाब बोला जाता, आज के जमाने में उसको मैथ बोल देते। कौन लिखने वाला? सबसे बड़ा साइंस मैथमेटिशियन कौन? इब्ने बाजा। सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट कौन? बताओ, हिबतुल्लाह बगदादी। सबसे बड़ा फलसफी कौन? इमाम गज़ाली। वो अलग बात है कि कुरान करीम से जो चीज़ें सादिर, जो चीज़ें मॉडर्न एतबार से बयान की गई है वो हम बयान नहीं करते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले तो बस ऐसे ही। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उस्वा हसना है, बेहतरीन नमूना है। आप पढ़ कर देखो, फॉलो करके देखो, आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको आधुनिक एतबार से लैस शरीयत इस्लामी। लोग इस बात को नहीं मानते थे कि इम्पॉसिबल टू राइट अप एंड टू स्काई, आसमान से आसमान तक, जमीन से जाना इम्पॉसिबल। मना कर दिया उन्होंने कि नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आसमान पे कोई जा नहीं सकता, दरवाजे नहीं, कैसे जाएंगे? तो इस एतबार से अल्लाह के नबी जब मेराज पे गए तो वह गलत। लेकिन अब जब चांद पर पहुंच गए, चांद पर लोग, चांद नहीं मार्स पे भी पहुंच गए, मार्स, चांद पे भी पहुंचे, मार्स पे भी पहुंचे। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो अभी चांद पर पहुंचे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मिनटों सेकंडों में मस्जिद नबवी से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर आप बैतुल मक़दिस और वहाँ से लेकर आप सिदरतुल मुंतहा तक चले गए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। वो मिसाल मौजूद है कि नहीं? अभी चांद में गए तो बड़े साइंसदान, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 1450 साल पहले चांद नहीं बल्कि सातों आसमान का, सिदरतुल मुंतहा का, अर्श मुअल्ला का, बल्कि सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। नबी की जात पर, नबी की शरीयत पर एतराज करने वाले, तुम्हें मानना पड़ेगा इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, एक एक बातों पर अमल करोगे। कुछ लोग तो पहले यूं बोलते थे कि सूरज नहीं घूमता है, जमीन नहीं घूमती है। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सारी ये बातें फेल हो गई। जदीद साइंस का क्या मानना है? जदीद साइंस का कि जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है। ये रिपोर्ट, ये तहकीक किसने पेश की? जदीद मॉडर्न साइंस का, जदीद साइंस का बानी किसको माना जाता? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने शादी नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा कि जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है अपनी अपनी जगह पर। किसी ने पूछा where did you bring it and it's practical and it is a practical and do you have any kind of proof? आपके पास कोई दलाइल है? उन्होंने कहा yeah I have a proof। उन्होंने कुरान करीम खोल करके बताया कि जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है। और उन्होंने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को, जमीन और सूरज अपने अपने मदार पर घूमते हैं, सुबह शाम घूमते रहते हैं। कुरान करीम की दलील पेश की। पूछो सकरात से और पूछो पुराने साइंसदानों से, जो एक जमाने तक यह अकीदा था कि सिर्फ जमीन घूमती है, सूरज रुका हुआ है। फिर कुछ दिनों तक यह अकीदा रहा कि सूरज घूमता है, जमीन रुकी हुई है। लेकिन जब कुरान ने एक चैलेंज किया कि नहीं सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है, आज जदीद साइंस का यही मानना है जो कुरान का मानना है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह यू विल फॉलो एंड यू विल हैव टू फॉलो, यू विल फॉलो नॉट यू विल हैव टू फॉलो। तुम्हें फॉलो करना होगा हमारे कुरान की स्ट्रक्चर को, हमारे कुरान के संविधान को, बिकॉज कुरान एंड डजंट डिनाई एंड कुरान डजंट एंड पुट द क्रूलिटीज एंड वायलेंस। कुरान में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, इंसानियत को आम करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, बस उसको उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। मैं सोच रहा था पौन घंटे में बात पूरी करूं, सरफराज साहब के डर से मैं पहुंचा, नहीं तो आज फिर हम कहीं और होते। बहुत सारी काम की बातें हमारे और मुक़र्रिरीन ने आपको बताई। मैं कोई मुक़र्रिर नहीं, राइट नाउ आई एम ओनली अ स्टूडेंट। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर होती है कि जो बहुत सारे हक़ाइक़ जो पुरानी दस्तावेज़ और किताब में छुपी हुई वो आज की तारीख़ में लाना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें हर पहलू और हर एतबार से हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कब किसका जवाब देना है, कैसे बातिल का मुकाबला करना है, पुरअमन तरीक़े पर वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। हमको संविधान भी उसकी इजाज़त देता है, भारत का आइन और कानून भी उसकी इजाज़त देता है, और इतिहास भरी पड़ी है। ज़रूरत है आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए। यू मस्ट टू एजुकेट योर चाइल्ड एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज़ अ वेरी बैड। बहुत बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं।